everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question on transfer pricing. Great Vision manufactures a wide range of optical products including lenses and surveillance cameras. Great Vision एक wide range of optical product manufacture करता है including lenses and surveillance cameras. Division A manufactures the lenses while Division B manufactures surveillance camera. Great Vision में दो division है, Division A और Division B. Division A lenses manufacture करता है और Division B surveillance cameras manufacture करता है. The lenses that Division A manufacture is of standard quality that has a number of application. जो Division A lens produce करता है वो standard quality का है और उसके बहुत सारे applications है. Due to huge demand in the market for its products, Division A is operating at full capacity. Division A के product की huge demand है market में और इसीलिए वो अपनी full capacity पे operate कर रहा है. It sells its lenses in the open market for rupees 140 per lens, right? The variable cost of production for each lens is rupees 110 while the total cost of production is rupees 125 per lens, right? वो मार्केट में अपने लेंस कितने रुपए में बेच रहा है? रुपीज 140 पर लेंस और उसका वेरिएबल कॉस्ट कितना है मैन्युफैक्चरिंग का एक लेंस का? रुपीज 110 और टोटल कॉस्ट कितना है? रुपीज 125. देखिए ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है 110, 15 रुपए फिक्स कॉस्ट है उसमें से, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ? 125 और उसको बेच कितने में रहा है? 140 रुपीज में, राइट? The total production cost of a camera by Division B is rupees 400 each. Total cost of production of camera. Division B क्या बनाता है? Surveillance camera बनाता है. उसकी total cost of production variable plus fixed कितनी है? रुपीज 400 each. Currently Division B procure lens from foreign vendors. The cost per lens would be rupees 170 each. Division B को जो lens लगता है, surveillance camera बना रहे हैं उसके लिए lens लगता है, वो foreign vendor से ले रहा है रुपीज 170 each. The management of Great Vision has proposed that to take advantage of in-house production capabilities and consequently the procurement cost of the lens would reduce. Management क्या बोलता है Great Vision का? अगर हम in-house capabilities को use करेंगे, ठीक है, अगर जो Division A lens बना रहा है वो Division B use कर लेगा तो क्या होगा इससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट रिड्यूस हो जाएगा. इट इज प्रपोज दैट डिवीजन बी शुड बाय एन एवरेज ऑफ 5000 लेंस ईच मंथ फ्रॉम डिवीजन ए एट रुपीज 120 पर लेंस. ऐसा प्रपोज किया जा रहा है कि डिवीजन बी डिवीजन ए से 5000 लेंस लेगा एक मंथ एट द रेट रुपीज 120 पर लेंस. डिवीजन ए कितने में बाहर बेचता है? 140. वेरिएबल कॉस्ट 110 और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 125. द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ अ सर्वेलेंस कैमरा. Other component purchased from external vendor 150. Cost of lens purchased from division A 120. 120 में खरीद रहा है. Other variable cost 30 है, fixed overhead 50 है, total cost of camera कितना है? 350. जब पहले 120 में जो प्रपोज किया गया है कि B A से लेगा लेंस 120 रुपीज में, वो पहले जब 170 में बाहर से खरीदता था तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 400 थी, राइट? Each surveillance camera is sold for rupees 410. 400 cost of production थी और हर एक surveillance camera 410 rupees में क्या बिकता है. The margin for each camera is low since competition in the market is high. इतने low margin पे क्यों बेच रहा है? क्योंकि competition बहुत ज़्यादा है मार्केट में. Any increase in price of a camera would reduce the market share. आपने थोड़ा भी increase किया प्राइस कैमरा का तो market share reduce हो जाएगा, राइट? आप प्राइस कम रखेंगे तो market share मेंटेन रहेगा. Therefore division B cannot pay division A beyond rupees 120 per lens procured. इसलिए division B division A को 120 per lens से ज्यादा नहीं दे सकता है. क्यों? क्योंकि 120 जब देगा तभी तो जाके कॉस्ट 350 हो रही है. 410 में तो उसको बेचना ही है इतने लो मार्जिन में, इसलिए 120 रुपए से ज्यादा वो नहीं दे सकता है. ग्रेट विजन मैनेजमेंट यूजेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज अ स्केल टू मेजर द डिविजनल परफॉर्मेंस एंड मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच फॉर डिसीजन मेकिंग. ग्रेट विजन मैनेजमेंट क्या यूज करता है डिवीजन का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए? डिवीजन ए का अलग मेजर होगा, बी का अलग, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेजर यूज करता है डिवीजन का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए. और क्या यूज करता है डिसीजन मेकिंग के लिए? मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच यूज करता है, राइट? नाउ रिक्वायर्ड क्या है? एनालाइज द बिहेवियरल
Consequence of each division when division A supplies lenses to division B at rupees 120 per lens. Substantiate your answer based on the information given in the problem. आपको बिहेवियर का एनालिसिस करना है जब डिवीजन ए डिवीजन बी को 120 रुपीज में लेंस देगा, 120 रुपए में लेंस देगा, 140 में वो मार्केट में बेचता था. तो आपको ए डिवीजन के मैनेजर का बिहेवियर और बी डिवीजन के मैनेजर का बिहेवियर एनालाइज करना है. Second, analyze if it would be beneficial to the company as a whole for division A to supply the lens to division B at rupees 120 per lens. देखिए अलग अलग डिवीजन A और B का जो भी प्रॉफिट लॉस हो, लेकिन एज अ होल कंपनी को क्या प्रॉफिट है, बेनिफिशियल है 120 रुपीज में लेंस देना, राइट? जब ए बी को लेंस देगा 120 रुपीज में, तो क्या कंपनी को वो बेनिफिशियल है क्या, राइट? Do you feel that the divisional manager should accept the internal division transfer in principle? If yes, calculate the range of transfer price. आपको लगता है क्या कि जो डिविजनल मैनेजर है उसको ये इंटरनल डिवीजन ट्रांसफर एक्सेप्ट करना चाहिए? अगर yes, तो आपको रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस बताना है, राइट? Advise alternate transfer pricing models that the chief executive of the company can consider in order to change the attitude of the divisional heads if they are against the transfer pricing policy. आपको ये बताना है कि अगर जो डिविजनल मैनेजर है, डिविजनल हेड है, वो अगेंस्ट है अगर ये ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी के, तो ऑल्टरनेटिव और क्या क्या मॉडल्स हैं, राइट? अगर आप बोल रहे हैं नहीं मैं इतने में नहीं दूंगा, मैं इतने में नहीं लूंगा, तो ठीक है, आपके पास और क्या ऑल्टरनेटिव ट्रांसफर प्राइसिंग मॉडल्स है वो बताना है. कैलकुलेट द रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस इफ डिवीजन ए हैज एक्सेस कैपेसिटी एंड कैन अकोमोडेट द इंटरनल रिक्वायरमेंट ऑफ 5000 लेंस पर मंथ विद इन द करंट ऑपरेशंस. अभी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है कि डिवीजन ए के पास कोई भी स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, फुल कैपेसिटी पे वो वर्क कर रहा है. अभी आप ये 5th पॉइंट में एज्यूम करेंगे कि डिवीजन ए के पास एक्सेस कैपेसिटी है, 5000 लेंसेज वो आराम से एक्सेस कैपेसिटी में बना सकता है, तब आप बताएंगे ट्रांसफर प्राइस की रेंज, राइट? सो बेसिकली आपको समझ आ गया कि क्वेश्चन क्या है. अभी फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस बताना है डिवीजन ए के मैनेजर और डिवीजन बी के मैनेजर का अगर 120 रुपीज में लेंस ट्रांसफर हो रहा है तो, राइट? क्या होगा देखिए, 120 रुपीज में जब लेंस ट्रांसफर होगा तो क्या होगा देखिए कि जब बाहर हम बेचते हैं लेंस, मार्केट में बेचते हैं तो 140 रुपीज में बेचते हैं, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 110, 30 रुपीज का कंट्रीब्यूशन हम अर्न करते हैं. लेकिन जब हम इंटर डिविजनल ट्रांसफर करेंगे 120 में और 110 हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, तब सिर्फ हम 10 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ही अर्न करेंगे. पहले कितना अर्न कर रहे थे 30 रुपीज, और अभी कितना अर्न कर रहे हैं 10 रुपीज प्रॉफिट ही अर्न कर रहे हैं, ठीक है? सॉरी कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हैं. पहले प्रॉफिट कितना अर्न करते थे 140 माइनस 125, क्योंकि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 125, तो प्रॉफिट कितना आएगा 140 माइनस 125, 15 रुपीज पर यूनिट हम प्रॉफिट अर्न कर रहे थे. सो ROI कितना होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न है 15 रुपीज, प्रॉफिट है 15 रुपीज और इन्वेस्टमेंट कितना है 125. सो 15 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 कितना 12%. समझ में आया आपको? 140 माइनस 110, 30 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हैं अभी बाहर मार्केट में बेचने से. 140 माइनस 125, 15 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कितना है 125. सो 15 रुपए का प्रॉफिट 125 पे, यानी 15 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, 12% हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? अभी क्या है 12% हमारा क्या है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है. लेकिन जब हम इंटर डिविजनल ट्रांसफर करेंगे, जब हम इंटर डिविजनल ट्रांसफर करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 रुपए हो जाएगा और 120 रुपए में ट्रांसफर करने से 120 माइनस 125 एक यूनिट पे 5 रुपए का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा. तो ऑफ कोर्स डिवीजन ए का मैनेजर उसके अगेंस्ट रहेगा, राइट? वो नहीं ट्रांसफर करने को बोलेगा 120 रुपए में. लेकिन जब आप डिवीजन बी की बात करेंगे तो डिवीजन बी का मैनेजर ऑफ कोर्स लेने के लिए तैयार होगा. कैलकुलेशन मैं आपको बता दी हूँ, लॉजिकली सोचिए 170 में आपको मिल रहा था पहले, अब 120 रुपए में मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स यू विल बी रेडी, राइट? सो नाउ division A yield contribution of rupees 30. कैसे? rupees 140 market price minus rupees 110 variable cost by selling
in external market and profit of कितना रुपीस, कितना प्रॉफिट रुपीस 140 में बेच रहे हैं और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 125, प्रॉफिट ऑफ रुपीस 15 पर यूनिट, राइट। सो ROI कितना होगा, प्रॉफिट 15 और इन्वेस्टमेंट 125 into 100 इज इक्वल टू 12%, राइट। 15 डिवाइडेड बाय 125 into 100, 12% क्या अर्न कर रहे हैं, ROI अर्न कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना अर्न कर रहे हैं, 12%। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले सब अच्छा चल रहा था। नाउ इफ डिवीजन ए सेल्स टू बी एट द रेट रुपीज 120 पर यूनिट, देन contribution per unit is equal to 120 minus 110 is equal to rupees 10 per unit। contribution rupees 30 से क्या हो जाएगा, rupees 10 हो जाएगा, और profit per unit कितना हो जाएगा, 120 minus 125, बेसिकली लॉस हो जाएगा 5 रुपीज का। देयर इज लॉस ऑफ ₹5, क्या है, लॉस है ₹5 का, ठीक है। 5 रुपए का लॉस हुआ, मतलब क्या कि वो फिक्स कॉस्ट भी टोटली रिकवर नहीं कर पा रहा है, राइट। फिक्स कॉस्ट टोटली रिकवर नहीं कर पा रहा है, यही मतलब होगा। और इसका ROI भी नेगेटिव आएगा, -5 डिवाइडेड बाय 125 आ जाएगा, तो माइनस में आएगा ROI, ठीक है। तो ये बेनिफिशियल तो नहीं है डिवीजन ए के मैनेजर के लिए। मैनेजर ऑफ डिवीजन ए will not accept transfer price of ₹120, लोअर प्रॉफिटेबिलिटी। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट क्या हो रहा है, लोअर हो रहा है। वो क्या करेगा, डिमोटिवेट करेगा, विल डिमोटिवेट मैनेजर। अब इसके लिए क्या करेगा कि जो ग्रेट विजन है, वो कंपनी है, वो क्या सोचेगी, ठीक है इसके कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है। ग्रेट विजन विल प्लान टू इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ डिवीजन ए, बट as it is not able to recover fixed costs and giving negative ROI, hence manager of A will not एक्सेप्टेड। आपको समझ में आया क्या बात है कि पहले तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लॉस है 5 रुपए का, उसके अलावा ROI नेगेटिव है। अभी ग्रेट विजन बोलेगा ठीक है कैपेसिटी आपकी बढ़ा देते हैं, जो आप बाहर बेच रहे थे वो बेचिए और आप क्या करिए, इंटर डिविजनल ट्रांसफर भी करिए, लेकिन वो फिक्स कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहा है और इसके ROI भी क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, राइट। तो इसीलिए क्या बोलेगा, डिवीजन ए का मैनेजर एक्सेप्ट नहीं करेगा ये ट्रांसफर प्राइस, राइट। अभी डिवीजन बी के मैनेजर की बात आ रही है, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कैमरा इज ₹400। अभी तो 400 है, ये जो 350 वाला आपको क्वेश्चन में दिया है वो तो जब 120 में डिवीजन एक देगा तब, लेकिन पहले तो कितना था, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 400। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, सेलिंग प्राइस 410 था और 400 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ₹10 पर यूनिट। सो ROI कितना हो जाएगा, रिटर्न है 10 रुपए 400 की इन्वेस्टमेंट पे इनटू 100, कितना 2.5% ROI। लेकिन अब क्या हो जाएगा, इफ लेंस इज प्रोक्योर्ड, अगर लेंस कितने में मिल गया, एट द रेट ₹120 पर यूनिट
फ्रॉम डिवीजन ए। अगर डिवीजन ए से कितने में मिल गया, 120 रुपीज़ में मिल गया, तभी क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू ₹350। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा 350। सो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 410 में बेच रहे थे और 350 क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो ₹60 पर यूनिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ROI कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 350। इन्वेस्टमेंट 350 का होगा ना, फिर 400 का क्यों होगा। आपको समझ आ रही है बात। पहले जब 170 में लेते थे तब प्रॉफिट था ₹10 पर यूनिट। सो रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट टोटल 400 रुपीज़ का हो रहा है, तो ROI है 2.5%। अभी रिटर्न आ गया 60 रुपीज़। क्यों, 170 का लेंस अब हमको मिल रहा है 120 रुपीज़ में, राइट। तो सीधे सीधे 50 रुपीज़ से कॉस्ट कम हुई और 50 रुपीज़ से प्रॉफिट बढ़ गया। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट कितना है, 350 इंटू 100। सो 60 डिवाइडेड बाय 350 इंटू 100 कितना, ROI कितना हो गया, 17.14%। एज ROI हैज इंक्रीज्ड, डिविजनल मैनेजर ऑफ B विल एक्सेप्ट दिस ट्रांसफर प्राइस। वो 120 रुपये ऑफकोर्स क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ROI के बेसिस पे तो उनका परफॉर्मेंस मेजर होता है और ROI इंक्रीज हो रहा है, तो ऑफकोर्स वो क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अभी पहले बता दिया आपको फर्स्ट पार्ट में कि A अगेंस्ट जाएगा, B का मैनेजर एक्सेप्ट करेगा। सेकेंड पार्ट, analyze if it would be beneficial to the company as a whole for division A to supply lens to division B at ₹120 per lens। as a whole company आप बताइए कि beneficial होगा क्या। अगर as a whole company देखें तो ये ट्रांसफर प्राइस डिवीजन A और B अलग अलग नहीं है, डिवीजन A और B अलग अलग नहीं है, चाहे वो कितने भी ट्रांसफर प्राइस पे दे, अलग अलग नहीं है वो डिवीजन A और B। सिर्फ क्या होगा, डिवीजन A बेचने की जगह किसको देगा, डिवीजन B को देगा, बेचेगा नहीं, यानी 5000 यूनिट्स वो बेचेगा नहीं। एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन का लॉस होगा 30 रुपीज, मतलब कितना, 1,50,000 का कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है, ठीक है, डिवीजन ए का। समझ में आया आपको, वो बेचेगा नहीं, 1,50,000 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है। अब बी से बाहर जा रहा है, बी जो है बाहर सेल करिए कितने रुपए में, 410 रुपीज में, 410 रुपीज में सेल करिए। लेकिन अब ये ट्रांसफर प्राइस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी क्या आप पूरे कंपनी के लिए देख रहे हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 110 रुपीज। सो 110 रुपीज है। सेकेंड, तो अब देखिए कि जब ये ट्रांसफर कर रही है तो इनको बाहर से नहीं खरीदना पड़ रहा है, ठीक है। 410 में तो बाहर बेच रहा है कैमरा, लेकिन जब लेंस की बात की जाए तो लेंस हमको बाहर से 170 में प्रोक्योर कर रहे थे, अब 170 में प्रोक्योर नहीं करना पड़ रहा, 110 रुपीज में मिल रहा है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है 110, चाहे ये ट्रांसफर प्राइस कुछ भी हो 110 में मिल रहा है और 170 में मिलता था। 60 रुपीज सेव हो गए मेरे, 60 रुपीज सेव हुए इंटू 5000, मतलब कितने, 3 लाख रुपीज सेव हो गए। और कंट्रीब्यूशन का लॉस कितना हुआ, 1,50,000, क्योंकि मार्केट में बेच रहा था जब डिवीजन है तो कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा था, 30 रुपए का, राइट। तो वो क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन लॉस हो गया, राइट। तो कंपनी को ओवरऑल कितना, 1,50,000 का प्रॉफिट ही होगा, राइट। अगर आप देखेंगे तो ये लेंस 120 रुपीज में बेच रहे हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ अलग अलग डिवीजन का निकाल के भी, दोनों डिवीजन का अलग अलग निकाल के भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए डिवीजन ए 110 रुपए में बनाता है, 120 रुपए में बेचता है, समझ में आया। डिवीजन ए अभी अलग अलग है, डिवीजन ए और बी, 110 रुपए में बनाता है, 120 रुपए में बेचता है, 10 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन मिला, 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिला। कंट्रीब्यूशन लॉस कितना हुआ, कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ 30 रुपए का, बाहर बेचता 140 में और 110 में बनाया, 30 रुपए का लॉस हुआ, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सो बेसिकली आपका
लॉस कितना हुआ 20 रुपए का, 20 रुपए का लॉस हुआ 5000 यूनिट पे, यानी कितना लॉस हुआ 1 लाख रुपए का लॉस हुआ डिवीजन ए का। 1 लाख रुपए का लॉस हुआ डिवीजन ए का। जब हम डिवीजन बी का देखेंगे तो ठीक है, डिवीजन बी को 170 रुपए में मिलता था, 170 रुपए में मिलता था, अब 120 रुपए में मिलेगा, यानी 50 रुपए मेरी सेविंग हो गई। 50 रुपए सेविंग हो गई, 5000 यूनिट पे कितनी सेविंग हो गई, 2,50,000 की सेविंग हो गई। नेट कितना किया, 50,000 सेविंग हो गई, 1 लाख रुपए मेरा लॉस हो गया, तो 1,50,000 रुपए मैंने कमा लिए। अगर डिवीजन का अलग अलग भी देखे तो मैंने 1,50,000 रुपए कमा लिए, और दोनों डिवीजन अलग अलग नहीं है तो भी क्या कि मेरा 30 रुपए का एक यूनिट पे लॉस हुआ कंट्रीब्यूशन, तो 30 इंटू 5,000 1.5 लाख का लॉस हुआ, और मुझे 170 में मिला, जो मिलता था वो अब 110 रुपए में मिल जाता है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो 60 रुपए सेविंग हो गई। सो 60 इंटू 5,000 3 लाख, 3 लाख सेव हुआ, 1.5 लाख कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ, तो 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, राइट। पहले क्या होता था देखिए, अब कंपनी के प्रॉफिट को फर्क पड़ा है क्या देखते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि ए बाहर बेचता था, ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट को फर्क पड़ा के देखिए, कंपनी का तो आपने देख लिया कि 1.5 लाख का अभी प्रॉफिट है, क्यों, क्योंकि 70 में आपको मिलता था, 110 में अब मिलेगा, 60 रुपए की सेविंग, और 30 रुपए का क्या होगा कंट्रीब्यूशन का लॉस होगा, राइट। तो आपको 3 लाख सेविंग हो रही है, 1.5 लाख का लॉस हो रहा है, 1.5 लाख प्रॉफिट है। पहले क्या होता था, पहले देखिए मैं यहाँ बाहर बेचता था, मैं ये रफ वर्क कर रही हूँ, ठीक है, मैं ए डिवीजन हूँ, मैं बाहर बेच रही हूँ, ए और बी, ठीक है, ए और बी मैं ये बाहर बेच रही हूँ, ठीक है। अभी के सिचुएशन में मैंने आपको बता दिया कि कैसे कंट्रीब्यूशन का लॉस होगा। देखो मैं आपको तीनों सिचुएशन बता रही हूँ, ठीक है, तीनों सिचुएशन में आपको बता रही हूँ कि पहले क्या करते थे, 30 रुपए यहाँ कंट्रीब्यूशन अर्न करते थे, बाहर बेचता था डिवीजन ए और 30 रुपए कंट्रीब्यूशन अर्न करता था। 30 इंटू 5,000 कितना कंट्रीब्यूशन अर्न करता था, 1,50,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न करता था पहले, ठीक है। पहले ये कंट्रीब्यूशन यहाँ अर्न करता था, और ये जो डिवीजन बी है, डिवीजन बी 170 में खरीदता था, 170 में लेंस खरीदता था, राइट, कोई और ऑप्शन था ही नहीं, 170 रुपीज में वो लेंस खरीद लेता था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिख रही हूँ। सो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 1,50,000, ठीक है। लेकिन अभी सेकेंड ऑप्शन, मैं बाहर लेंस नहीं बेच रही हूँ, मैं डिवीजन बी को लेंस बेच रही हूँ, मैं बाहर लेंस नहीं बेच रही हूँ, मैं डिवीजन बी को लेंस बेच रही हूँ, तो मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस कितना हुआ, 30 रुपीज का, मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ 30 रुपीज का, और मैं डिवीजन बी को दे रही हूँ कितने रुपए में, 120, तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गेन कितना हुआ, 10 रुपीज का, राइट। 140 में बेचती थी, ठीक है, अब मैं इसको 120 में दे रही हूँ, ठीक है, यानी 20 रुपीज का मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ, 20 रुपीज का कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ 5,000 यूनिट्स के लिए। सो 1 लाख का लॉस हुआ कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और बी को क्या हुआ, 170 वाली चीज 120 में मिल गई, 170 वाली चीज किस में मिल गई, 120 में मिल गई, यानी 50 रुपए की सेविंग हो गई इंटू 5,000, यानी 2,50,000 की इसकी क्या हो गई, सेविंग हो गई, ठीक है। ओवरऑल देखिए 1,50,000 का प्रॉफिट, अभी भी देखिए क्या 2,50,000 सेविंग माइनस 1 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस हुआ, तो 1,50,000 का प्रॉफिट, ठीक है। जब डिवीजन ए और बी अलग अलग नहीं है तभी क्या होगा कि कंट्रीब्यूशन का लॉस होगा, कंट्रीब्यूशन का लॉस कितना होगा, 30 रुपीज का, 5,000 यूनिट्स पे 1,50,000 का कंट्रीब्यूशन लॉस होगा, और वही 50 रुपीज की सेविंग हो जाएगी, राइट, 2,50,000। सो ये टोटल कंपनी का क्या हुआ, 1,50,000 की क्या हो गया, प्रॉफिट अर्न हो गया। सो आप देखिए कि जब भी ट्रांसफर प्राइस बदला,
राइट। जब भी ट्रांसफर प्राइस बदला या कुछ भी हुआ तो डिविजन्स के प्रॉफिट पे अंतर पड़ा कि 1,50,000 था, यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ 1 लाख का लॉस हो गया और यहाँ 2,50,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन ओवरऑल तो 1,50,000 ही रहा। कंपनी का प्रॉफिट कितना रहा? सेम रहा, 1,50,000, राइट। तो अभी मैं लिख रही हूँ, इफ वी सी profitability of company as whole, then company क्या, सबसे पहले company will lose contribution of ₹30 per unit by not selling इन मार्केट। 30 रुपए का कंट्रीब्यूशन पहले तो वो क्या करेगी? लूज करेगी। सो 30 इंटू 5,000, 1,50,000 ये लूज करेगी कंट्रीब्यूशन। फिर कंपनी विल अर्न बाय ट्रांसफरिंग नहीं, अभी ट्रांसफर तो हो ही नहीं रहा ना, ट्रांसफर वाला कंपनी बाय ट्रांसफरिंग, ये तो आप देखेंगे ही नहीं। ये लूज करेगा 30 रुपीज का कंट्रीब्यूशन और कंपनी विल सेव रुपीज कितना? 60 पर यूनिट। कैसे 60 पर यूनिट सेव कर लेगी कंपनी? 170 में उसको बाहर से प्रोक्योर होता था लेंस, अभी कितना? 110 में मिल रहा है। ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। सो 60 रुपीज पर यूनिट सेव हो रही है। सो 60 इंटू 5,000 कितना? 3 लाख। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन 1,50,000, मतलब प्रॉफिट फॉर ओवरऑल कंपनी रिमेन्स सेम। अगर आप कोई भी ट्रांसफर प्राइस पे ट्रांसफर करो तो डिवीजन के प्रॉफिट डिफर करेंगे अलग अलग ट्रांसफर प्राइस पे, लेकिन ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट क्या रहेगा? सेम रहेगा। आपको समझ में आया कि मैंने क्या किया? राइट, पहले मैंने क्या किया कि 30 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मिल रहा था हमको बाहर बेचने से और बी में कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर दूसरे में देखा कि 30 रुपीज का कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ, लेकिन 10 रुपए कंट्रीब्यूशन अर्न हो रहा है, यानी 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ। 5,000 यूनिट के लिए 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ। और डिवीजन बी ने क्या अर्न किया? 170 में मिल रहा था, अभी 120 में 50 रुपए की सेविंग की। 5,000 यूनिट पे 2,50,000 की सेविंग की। तो कितनी सेविंग हुई? 2,50,000 माइनस 1 लाख, टोटल 1,50,000 की सेविंग हुई। दोनों में सेम है इनकी कंट्रीब्यूशन। अभी थर्ड क्या कि पूरी कंपनी को एक रखो, तो सिंपल है, क्या होगा कि 30 रुपीज का कंट्रीब्यूशन लॉस होगा, राइट। ये जो लॉस है ये होगा 30 रुपीज का बाहर नहीं बेचने से, लेकिन सेव कितना किया? 110 रुपए में बन गया। कोई ट्रांसफर प्राइस नहीं है 120 रुपए का, क्यों? कंपनी पूरी एक है, तो मेरी 110 रुपए में मुझे मिल सकता है। अभी पहले 170 रुपए में प्रोक्योर कर रहा था बाहर से लेंस, राइट, प्रोक्योर कर रहा था बाहर से लेंस 170 रुपए में, तो वहां 60 रुपए की सेविंग हो गई। वहां 60 रुपए की सेविंग हो गई, कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ 30 रुपए का। सो टोटल सेविंग कितनी? 60 माइनस 30, ये मैंने आपको लिखा भी है। 30 रुपीज की पर यूनिट सेविंग हो गई, इंटू कितना? इंटू 5,000 यूनिट्स, तो 1,50,000। देखो आप, मैंने लिखा है ₹30 का कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ, राइट, पर यूनिट इंटू 5,000 यूनिट्स, तो 1,50,000 का कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ और 60 रुपीज की सेविंग हुई। 170 में प्रोक्योर कर रहे थे फॉरेन वेंडर से, 110 में अब मिल रहा है। वेरिएबल कॉस्ट है, राइट, अभी कोई ट्रांसफर प्राइस नहीं है, तो वेरिएबल कॉस्ट ही मेरी प्राइस हो गई इंटू 5,000, तो सेविंग हो गई 3 लाख की। तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन 3 लाख माइनस 1,50,000, 1,50,000 का प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विल रिमेन सेम। डिवीजन के प्रॉफिट में चेंजेस आएंगे, राइट। देन नंबर थर्ड, ये दोनों हमने आंसर कर दिए।
Number third, do you feel that the divisional managers should accept the interdivisional transfer in principle? If yes, calculate the range of transfer price. आप बिलीव करते हैं क्या कि डिविजनल मैनेजर को एक्सेप्ट करना चाहिए इंटरडिविजनल ट्रांसफर इन प्रिंसिपल? उनका प्रिंसिपल बोलता है क्या इंटरडिविजनल ट्रांसफर को एक्सेप्ट करने? इफ यस, कैलकुलेट द ट्रांसफर प्राइस की रेंज, राइट? सो एक्सेप्ट करना चाहिए, क्यों? बिकॉज सब ऑर्डिनेट डिविजनल प्रॉफिट्स टू कंपनी प्रॉफिट्स. सबऑर्डिनेट द इंटरेस्ट ऑफ डिवीजन टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी. सबऑर्डिनेट कर दो डिवीजन का इंटरेस्ट कंपनी के इंटरेस्ट के सामने. कंपनी का इंटरेस्ट ज्यादा है, ठीक है, इसलिए डिविजनल मैनेजर शुड एक्सेप्ट इंटर डिविजनल ट्रांसफर. डिविजनल managers should accept, भले ही ए का मैनेजर क्या थोड़ा अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन इट शुड एक्सेप्ट इंटर डिविजनल ट्रांसफर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल क्या है? सबऑर्डिनेशन of divisional interest against कंपनी इंटरेस्ट. मतलब क्या कि कंपनी के इंटरेस्ट के सामने आप डिवीजन का इंटरेस्ट मत देखो, राइट? अभी ट्रांसफर प्राइस की रेंज, रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस. मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितना होगा? मिनिमम ट्रांसफर प्राइस के लिए सिंपल होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इसका वेरिएबल कॉस्ट कितना है? वेरिएबल कॉस्ट है ₹110 पर यूनिट, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है? अगर बाहर बेचते तो ₹30 का कंट्रीब्यूशन मिलता. अभी नहीं बेच रहे तो ये क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन लॉस हो गया. सो ₹140 पर यूनिट क्या है? मिनिमम ट्रांसफर प्राइस. हैंस ए will not be, और 140 क्या है? 140 ही तो कौन सा प्राइस है? मार्केट प्राइस. तो जब स्पेयर कैपेसिटी नहीं होती तब मार्केट प्राइस पे ही बेचना है, राइट? वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ गया? मार्केट प्राइस. हेंस ए विल नॉट बी विलिंग टू सेल बिलो मार्केट प्राइस एज देयर इज नो स्पेयर कैपेसिटी. स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, इसलिए ए विलिंग नहीं होगा मार्केट प्राइस के नीचे सेल करने के लिए, राइट? अभी मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कैसे निकलता है? मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस निकलता है कैपेसिटी टू पे, कैपेसिटी टू पे और एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट whichever is lower. तो एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट तो सिंपल है ₹170 पर यूनिट. बाहर से कितने में मिल सकता है? 170 पर यूनिट पे. बाहर फॉरेन वेंडर दे ही रहा है 170 पर यूनिट पे. कैपेसिटी टू पे में क्या आएगा? कैपेसिटी टू पे ऐसे निकालते हैं कि जो उसका मार्केट प्राइस है उसमें से बाकी सारे कॉस्ट माइनस करते हैं, ठीक है? बाकी सारे वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो लेंस के लिए कैपेसिटी टू पे कितनी है. देखिए कैमरे का मार्केट प्राइस कितना है? ₹410, राइट? कैमरे का मार्केट प्राइस है ₹410 और बाकी के वेरिएबल कॉस्ट क्या है? उस लेंस के वेरिएबल कॉस्ट को छोड़ के, क्योंकि हम ये मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस किसके लिए निकाल रहे हैं? उस लेंस के लिए निकाल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसकी कॉस्ट माइनस नहीं करेंगे. तो कैमरे की सेलिंग प्राइस कितनी है? कैमरे की सेलिंग प्राइस है ₹410 और उस लेंस की कॉस्ट माइनस नहीं करेंगे, बाकी कॉस्ट माइनस करेंगे. वेरिएबल 150 + 30 ये माइनस करेंगे, राइट? 410 सेलिंग प्राइस है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे उन सब की, राइट? एक्सेप्ट जिसका ट्रांसफर प्राइस निकाल रहे हैं उसकी. तो लेंस की ट्रांसफर प्राइस निकाल रहे हैं, ये माइनस नहीं करेंगे. 150 और 30 माइनस करेंगे, 150 और 30 माइनस करेंगे, यानी 180 माइनस करेंगे. बेसिकली 410 माइनस
180 कितना आया 230 230 कैपेसिटी टू पे और एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कितना है 170 विच एवर इज लोअर. तो क्या लोअर है एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट 170. सो बी विल नॉट बी विलिंग टू पे मोर देन रुपीज 170. राइट. कैपेसिटी टू पे 410 माइनस 150 प्लस 30. राइट. सो ये क्या हो गया 230 और इज लोअर. तो क्या है लोअर 170. हैंस बी विल नॉट बी willing to pay more than rupees 170 per unit. So range of transfer price कितनी होगी. A 140 से कम में देगा नहीं रुपीज 140 पर यूनिट. 2 रुपीज 170 से ज़्यादा B देगा नहीं. सो रुपीज 170 पर यूनिट. ये क्या हो गई रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस. राइट. तो आपने ये बता दिया कि डिविजनल मैनेजर को एक्सेप्ट करना चाहिए कौन से प्रिंसिपल पे इंटर डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग की सबऑर्डिनेशन ऑफ डिविजनल इंटरेस्ट देन कंपनी इंटरेस्ट. मतलब कंपनी का अगर इंटरेस्ट है तो डिवीजन के इंटरेस्ट को क्या कर दो सबऑर्डिनेट कर दो प्रायोरिटी उसकी सेकंड कर दो. फिर आपने मिनिमम ट्रांसफर प्राइस निकाला मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस निकाला तो रेंज निकल गई. थर्ड पार्ट हो गया. नाउ फोर्थ advise alternate transfer pricing models that the chief executive of the company can consider in order to change the attitude of the divisional heads if they are against the transfer pricing policy. क्या बोला गया है अगर जो मैनेजर डिविजनल हेड्स है वो अगेंस्ट है ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी की तो ऑल्टरनेट ट्रांसफर प्राइसिंग मॉडल्स आपको बताना है. राइट. ऑल्टरनेट ट्रांसफर प्राइसिंग मॉडल्स कौन कौन से हैं. ऑल्टरनेट ट्रांसफर प्राइसिंग मॉडल्स है डुअल प्राइसिंग सिस्टम और टू पार्ट प्राइसिंग सिस्टम. डुअल प्राइसिंग सिस्टम में क्या होता है कि डुअल प्राइसिंग सिस्टम में मैं जैसे डिवीजन ए हूं तो मुझे जिस ट्रांसफर प्राइस पे रिकॉर्ड करना है मैं कर लूंगी. तुम डिवीजन बी हो तुमको जिस ट्रांसफर प्राइस पे रिकॉर्ड करना है तुम कर लोगे. इससे क्या है मैनेजर्स मोटिवेटेड रहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए. राइट. वरना उसी पे कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ट्रांसफर करेंगे ही नहीं. ट्रांसफर करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं. मुझे जिस प्राइस पे रिकॉर्ड करना है मैं करूंगी तुमको जिस प्राइस पे रिकॉर्ड करना है तुम करोगे. डिफरेंस को किस में डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट में. लेकिन इसके ड्रॉबैक्स हैं. ड्रॉबैक्स क्या है. ड्रॉबैक ये है कि सबसे पहली बात तो कंफ्यूजन होता है रिकॉर्ड कीपिंग में. रिकॉर्ड कीपिंग में कंफ्यूजन होता है और सिर्फ ये इंटरनल यूज के लिए है. बाहर कोई यूज नहीं कर सकता. दोनों अलग अलग रिकॉर्ड है. डिफरेंस है रिकॉर्डिंग में. राइट. ट्रांसफर प्राइस अलग अलग है. मैंने अलग रिकॉर्ड किया तुमने. तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है. राइट. लेकिन दो सिस्टम है. टू पार्ट प्राइसिंग सिस्टम में क्या होगा. टू पार्ट प्राइसिंग सिस्टम में ट्रांसफर प्राइस ऐसा होगा कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस एक लमसम अमाउंट. राइट. वेरिएबल कॉस्ट प्लस लमसम अमाउंट ये क्या हो जाएगा ट्रांसफर प्राइस हो जाएगा. तो ऑफ कोर्स ये किससे कम रहेगा 170 से तो कम रहेगा. राइट. ऐसा रहेगा कि ए भी मोटिवेटेड रहे लेकिन ऐसा भी रहेगा कि 170 से कम हो. राइट. टू ट्रांसफर प्राइसिंग system, two alternate transfer pricing system are A. Dual pricing system. Both divisions will record transfer price according to themselves. Like here देखिए 120 हुआ है डिसाइड लेकिन ए तो देगा नहीं 140 रुपए से कम में. तो ए 140 में रिकॉर्ड कर लेगा और बी 170 से ज्यादा नहीं देगा. बी 170 में रिकॉर्ड कर लेगा. लाइक हियर ए विल रिकॉर्ड एट द रेट रुपीज 140 पर यूनिट एंड बी विल रिकॉर्ड at the rate rupees 170 per unit and
difference will go in suspense account. इसमें प्रॉब्लम्स है कुछ, राइट? क्या प्रॉब्लम्स है? मैंने आपको बताया कि ये बाहर वालों के लिए यूजफुल है ही नहीं, राइट? बाहर वालों के लिए ये यूजफुल होगा ही नहीं क्योंकि उनको ये चीज़ समझ ही नहीं आएगी. फिर दूसरा है 2 पार्ट प्राइसिंग सिस्टम. इसमें क्या होता है? ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे सेट होता है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस लमसम अमाउंट. वेरिएबल कॉस्ट प्लस क्या होता है? लमसम अमाउंट. तो क्या होता है इसमें कि ऐसा कुछ लमसम अमाउंट फिक्स करना है कि वो ए के मैनेजर को भी एक्सेप्टेबल हो, बट इट शुड नॉट गो, द ट्रांसफर प्राइस शुड नॉट गो बियॉन्ड ₹170. लमसम amount should be set such that division A's manager should be satisfied, कि A के मैनेजर को भी लगना चाहिए कि ठीक है यार, ये ठीक किया है, and it should, and transfer price should also not go beyond ₹170. क्यों? क्योंकि 170 के ऊपर तो बी का मैनेजर नहीं देगा. देखिए 2 पार्ट प्राइसिंग सिस्टम क्या है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस लमसम अमाउंट. तो लमसम अमाउंट ऐसा फिक्स करो कि ए का मैनेजर भी सेटिस्फाई हो जाए और टोटल ट्रांसफर प्राइस 170 के ऊपर नहीं जाए, क्योंकि बी का मैनेजर 170 के ऊपर पे करने तैयार नहीं है. तो आपको समझ गया ऑल्टरनेटिव ट्रांसफर प्राइसिंग मोड्स कौन से, राइट? नाउ फिफ्थ में आपसे ये पूछा गया है कि अगर डिवीजन ए के पास क्या है? एक्सेस कैपेसिटी है 5000 कैमरास के लिए, तब ट्रांसफर प्राइसिंग की रेंज क्या होगी, राइट? अभी क्या था कि एक्सेस कैपेसिटी नहीं थी, तो हम क्या कर रहे थे कि मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस. क्यों? क्योंकि भाई तुम्हें देने के लिए मेरा वह कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है, लेकिन अभी कंट्रीब्यूशन लॉस कुछ नहीं हो रहा, तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट. सिंपल है. 4th आंसर कर दिया हमने. उसके बाद 5th में यही पूछा है कि अगर इंटरनल रिक्वायरमेंट को अकोमोडेट करने के लिए एक्सेस कैपेसिटी है डिवीजन ए के पास, तब हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग रेंज क्या होगा, राइट? सो Number 4th, if division A has excess capacity to accommodate 5000 lens, then minimum transfer price तो क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट. क्यों? क्योंकि कुछ भी कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं होगा. अगर फुल कैपेसिटी पे वर्क करता तो ही कंट्रीब्यूशन लॉस होता, लेकिन मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस सेम एज ऑफ 3. जो 3 में निकला है, ये 5 है, राइट? जो 3 में निकला है वही रहेगा मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, दैट इज ₹170. और वैसे ही निकलेगा कैपेबिलिटी टू पे, यानी ₹230 और ₹170, दैट इज प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, विच एवर इज लोअर. ₹170 इज लोअर. सो ट्रांसफर प्राइसिंग रेंज कितनी रहेगी? ₹110 to ₹170. ए इससे कम नहीं लेगा ₹110 से, ऑफकोर्स उसकी वेरिएबल कॉस्ट है, और बी 170 से ज्यादा नहीं लेगा. सॉरी, ए 110 से कम में नहीं देगा, उसकी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है, वो तो उसको लगनी है, उससे कम में वो कैसे दे देगा? सो ए 110 से कम में नहीं देगा, और बी 170 से ज्यादा भी नहीं लेगा. 170 में तो उसको फॉरेन वेंडर दे रहा है, तो उससे ज्यादा में वो क्यों लेगा? तो ये आ गई उसकी प्राइस रेंज, जब क्या है? स्पेयर कैपेसिटी है, एक्सेस कैपेसिटी है, राइट? तो हमने 5 क्वेश्चंस आंसर कर दिए. होप आपको समझ आ गए होंगे. फिर भी कोई भी डाउट हो इसमें, प्लीज फील फ्री टू आस्क. बाय बाय.